Hello, children, what's up? This is me, Arun Thakur, present before you. In this video tutorial, we will be discussing your chapter 1 of class 9. What this chapter is? The name of this chapter is, any guesses? Matter in our surrounding. So, this is the first chapter of your class 9 in science, right? So, children's talking about matter, can you able to see that matter could be classified into living as well as non-living? What are these living? In your chemistry, because the first chapter is of chemistry only, so it is very important to know that the living things will come under the section of bio, but in chemistry we are more associated with the non-living things. Particularly in this non-living things, we will be discussing about the chemicals, the chemical composition and their physical composition, right? So, what is a matter? A very definite question. A matter is anything that has mass and occupies some space. There are two conditions. What are these? First one is that matter should occupy some space, right? And for this it should have volume. Got it? Yes or no? If anyone asks you what is matter, your answer would be anything that has mass and occupies some space. Now again saying, here I'm saying the two things. What are these two things? Your first thing is your mass, and if it is occupying some space it must have volume. But it must have volume. Hope you have got this much. Yes or no? Having any doubt, you may put your doubt in the comment section below. So, matter in our surrounding. You observe sun, you observe clouds, you observe your pet, either maybe cat, dog, anything, rabbit. You observe the plant, your computer, your device in which you are seeing my video. You itself, glasses, butterfly, computer, coffee, desk. What are all these things? All these things constitute a matter. So that's why it is very important to study the matter, right? So matter in our surrounding. Modern days scientists have evolved the two types of the classification of the matter based on their physical properties as well as their chemical properties. So in this chapter we shall learn about the matter based on its physical properties. So initial in your book 7, it is some of the activities are given which are showing there that the how the matter physical property is, right? What kind of properties does a matter consist of? Your first activity is that you have to take some beaker, you have to note its level, add some water into it, right? Just mark some level. Now dissolve some salt or sugar. Dissolve what? Dissolve some sugar or water into it, right? Got it? Now you have to mark the, just draw the markings. Like if I'm letting this my beaker, I'm filling it with some solution and I'm adding, in this beaker I'm adding some sugar or maybe salt. Anything, that's your choice. Now you have to dissolve it with the glass rod, right? It may be available, it must be available in your lab. Now you will observe that the particles of the salt and sugar over the that dissolution, they will become invisible. Where had they gone? They had not gone, but they had broken into small minute particles and they had fitted into the space that is between them, right?
So first concept we can understand from this activity is that the matter is made up of particles, and what these particles are, these are too minute. We cannot observe these particles with our naked eyes, right? So that's why we are performing this activity, so that we are taking a huge amount of this sugar and we are adding it into a beaker, right? So what is the basic purpose of this activity? To understand that matter is made up of the particles, and that too is so small that we cannot observe those particles with our naked eye. Hope so you have got this thing. Yes or no? Guys, let me know if you are more comfortable in English or Hindi. I will try that I will use both the languages in my video tutorial, right? Okay. सो होप सो कि आपको पहली एक्टिविटी क्लियर हो चुकी होगी। पहली एक्टिविटी से हमें क्या क्लैरिटी मिलती है? दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। अब देखो, अगर कोई चीज़ ब्रेक डाउन ही नहीं होगी तो वो तो वैसे की वैसी रहेगी ना। लाइक अगर आप कुछ भी मान के चलो, एक आपके पास स्टोन है, अगर आप उसको तोड़ोगे नहीं या कुछ भी आप मान के मतलब मान सकते हो, अगर वो कुछ चीज़ टूटेगी नहीं, वो तो सेम ही रहेगी, राइट? तो सिमिलरली विद द मैटर, हमें ये यहाँ से क्लियर होता है, अगर वो मैटर टूटता नहीं स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में, और वो जो हमारा वाटर था, वाटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होती है जिसको बोलते हैं हम इंटर मोलिक्यूलर स्पेसेस। अगर मैं बात करूँ वाटर का मॉलिक्यूल कुछ ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा। ये हमारा ऑक्सीजन है ऊपर और नीचे हाइड्रोजन, बिकॉज फॉर्मूला क्या है, H2O, ठीक है। बाकी आप इसकी ज्योमेट्री की शेप 11th क्लास में ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे इन द चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग एंड इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आपको ये पहली एक्टिविटी होप सो क्लियर है। इस एक्टिविटी से हमें सिर्फ ये कंक्लूड करना है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स एंड these particles are so small. Next activity is that is about the physical properties of the matter. अब इसमें हमने क्या करना है, we have to take आपने वही बिकर ले लेना है, ठीक है। अब आपने पोटेशियम पर मैग्नेट लेना है। अगर हम बात करें कलर ऑफ द पोटेशियम पर मैग्नेट, तो वो डार्क पिंक होता है। व्हाट इज द कलर ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट? इट्स कलर इज डार्क पिंक, राइट। तो आपने उसको डिसॉल्व करना है उस वाटर में, ठीक है। इसकी उसको आपने डिसॉल्व करना है इस बिकर में। मान के चलो ये आपका बिकर है, आपने इसमें पोटेशियम पर मैग्नेट डाल दिया। लेट्स सपोज, सेकेंड, मैं इरेज करता हूँ, यहाँ पर वाटर ड्रॉ कर लेते हैं जरा, पिंक कलर हमारे पास यहाँ से, ठीक है। ये मान के चलो इसमें वाटर था, कुछ सम अमाउंट ऑफ द वाटर वाज देयर इनसाइड। अब जब आपने इसको डिसॉल्व किया इस बिकर को पानी में, आपने क्या ऑब्जर्व किया कि हाँ वो, अब सिंपल सी बात है, पानी से आधा, लेट्स सपोज इन्होंने 100 ml लिखा है तो हम भी 100 ml इसको फिल कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर लाइक दिस, जैसे आप देख पा रहे होंगे इसको मेरी साइड में, वैसे नहीं, इस साइड, सॉरी, साइड आप क्लियरली ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि मैंने 100 ml लिया है, ठीक है। अब आपने उसमें पोटेशियम पर मैग्नेट डाल देना है। कितना? पोटेशियम पर मैग्नेट, ठीक है। अब आपने जो पोटेशियम मैग्नेट है 100 था, अब इस 100 ml से आपने क्या करना है, इस 100 ml से आपने आपने 10 ml की टेस्ट ट्यूब लेनी है, 10 ml, ठीक है। 10 ml की जब आप टेस्ट ट्यूब लोगे, जो भी आपने पोटेशियम पर मैग्नेट डिसॉल्व किया था इस 100 ग्राम में, तो इसमें 90 मिलीलीटर बचेगा, है ना। और 10 ml आपने इस टेस्ट ट्यूब में ले लिया। जब आप इस टेस्ट ट्यूब को नेक्स्ट 100 ml में डालोगे, आप ऑब्जर्व करोगे कि उसका कलर थोड़ा डाइल्यूट हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या ऑब्जर्व कर सकते हो, और आपने ये करते जाने मतलब आपने स्पीकर में डाल दिया, यू हैड पुट दिस टेस्ट ट्यूब इनटू दिस स्पीकर। उसके बाद आपने नेक्स्ट में मतलब अगेन से 10 ml इसका उठाना है, इसका 10 ml उठा दिया और फिर से अगले में पुट कर देना है। आपने ऐसे कंटिन्यूसली करना है
जब तक ये ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। तो आपको क्या क्लैरिटी मिलेगी? आपको मिलेगी कि सिर्फ 2-3 क्रिस्टल्स जो होते हैं दैट इज कलरिंग माई होल द सोल्यूशन। आप सोच सकते हो दैट मैटर इज मेड अप ऑफ 2 टाइनी पार्टिकल्स, ठीक है। Got it? Got? So what idea you got from this previous activity? That matter is made up of tiny particles, ठीक है। अब हम बात करते हैं पार्टिकल्स ऑफ द मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, ठीक है। चाहो तो आप एक एक्टिविटी से डिफरेंट एस्पेक्ट समझ सकते हो, या चाहे आप डिफरेंट एक्टिविटी से एक एक एस्पेक्ट समझ सकते हो। अब यहाँ पर इन्होंने एक्टिविटी क्या दी है, आपने व्हेन वी मेक टी कॉफ़ी, ये इट्स एग्जांपल, इट्स नॉट एक्टिविटी। व्हेन वी मेक टी कॉफ़ी और लेमनेड, जिसको हम नींबू पानी बोलते हैं, पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ द मैटर गेट्स इनटू स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द अनदर, ठीक है। जैसे आपने नींबू डाला और नींबू में कौन सा एसिड होता है, जरा मेरे को कमेंट सेक्शन में नीचे बता दो दैट व्हिच एसिड इज फाउंड इन द लेमन। जल्दी से कम ऑन, ठीक है। जो भी एसिड था वो अगर आप पानी में डालोगे तो वो डिसोल्व उसमें क्यों हो रहा है? क्योंकि वाटर के पास भी कुछ स्पेसेस हैं, उसके बीच में स्पेसेस हैं, तभी जो आप एसिड डाल रहे हो वो उनके बीच में डिसोल्व हो रहा है, ठीक है। गॉट दिस आइडिया? तो यही बात है। लेट्स मूव फर्दर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल, अगेन इसमें ये कौन सी एक्टिविटी है? ये एक एग्जाम्पल है जो कि हमें प्रूव करता है कि जो पार्टिकल्स ऑफ द मैटर हैं दैट इज कंटिन्यूसली मूविंग। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हो, ये आप घर में भी ट्राई कर सकते हो, इट इज़ वेरी इजी। देखो आपने एक पिकर लेना है, क्या लेना है? एक पिकर लेना है, ठीक है। लेट्स टेक अप वन बिकर, ठीक है। कुछ ऐसा सा ही होता है, बिकर या कोई भी ग्लास ले लो। अगर आपके पास वो नहीं है तो चलो ग्लास ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। एक ग्लास ले लिया, ट्रांसपेरेंट ग्लास चाहिए हमें, ठीक है, ताकि तभी आप ऑब्जर्व कर पाओगे। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, अब इसमें आप इसको फिल कर लो, लेट्स सपोज हाफ ऑफ इट्स कैपेसिटी, ठीक है, आधा फिल कर लो इसको। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ऐड डाई, लेट्स से ब्लैक डाई इनटू इट, ठीक है। और इसको आप छोड़ दो, बस आपने उसकी ड्रॉप्स डालनी है और इसको ऐसे ही छोड़ दो। 2-3 घंटे के बाद इफ़ यू विल ऑब्जर्व आफ्टर 2 to 3 आवर्स, इफ यू विल ऑब्जर्व दिस बीकर, यू विल सी कि सारा ब्लैक हो गया है। हाउ दिस इज ट्रू? दिस इज बिकॉज जो पार्टिकल्स हैं दे आर नॉट लाइक दे आर स्टिल, दे आर कंटिन्यूसली मूविंग, ठीक है। गॉट इट? नेक्स्ट थिंग इज दैट, ओके, तो वो क्यों मूव करते हैं? द रीजन बिहाइंड इज डिफ्यूजन। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? The reason behind their movement is diffusion. What is this diffusion now? Diffusion is nothing but देखो आपने कई बार ऑब्जर्व भी किया होगा कि अगर आप देखो जो वाटर, जो वाटरफॉल होती है वो कुछ ऐसी सी होती है, ठीक है। माउंटेन होती है ऊपर, और माउंटेन से ऊपर से नीचे पानी बह रहा होता है, बट वो नीचे क्यों बहता है? वाई? आपने सोचा ये कभी? अगर मैं बोलूँ वो पानी नीचे से ऊपर क्यों नहीं जाता, तो बोलोगे व्हाट अ फुलिश क्वेश्चन यू आर आस्किंग टू अस। ऑफ कोर्स इट्स अ फुलिश क्वेश्चन बिकॉज water always move from the upper hill towards the downstream, right? What is the reason? Reason is quite simple. देखो ऊपर क्या है, ऊपर है हाई प्रेशर। what is found above here? here यहाँ पर क्या है? above the hill, अब high pressure, always and always, either it is pressure, either it is anything, यहाँ पर high concentration, things always move from high concentration to low concentration, and you have to understand this, sorry, you have to understand this thing very clearly. Always the things move from high concentration to towards the lower concentration. Got this much? Yes. Okay. तो इससे हमें क्या आइडिया मिलता है कि वाटर क्यों मूव कर रहा है? क्यों? बिकॉज ऑफ द प्रेशर डिफरेंस, बिकॉज ऑफ द कंसंट्रेशन डिफरेंस। वहाँ पर उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, नीचे कम है, इसलिए वो मूव कर रहा है। इट्स नॉट अबाउट कि मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर वाटर की ओनली, आप कोई भी चीज़ ले लो। अब देखो जो टोर्नेडोज आते हैं, थंडर स्टॉर्म्स आते हैं, वाई दे आर डूइंग, रीज़न क्या है उसका? उसका रीज़न भी यही है, दैट इज देयर कंसंट्रेशन डिफरेंस, right? So what is the diffusion? See, particles of the matter intermixes on their own. अब देखो जो प्रोसेस अपने आप होते हैं,
द प्रोसेस विच अकर्स बाय देयर ओन, उनके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं दैट इज स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस, ठीक है, आपने ये वर्ड याद रखना है, आपने 8th क्लास में भी पढ़ा होगा ये वर्ड, ठीक है, जो कंबशन वाला चैप्टर था, है ना, पढ़ा है ना। तो उस चैप्टर में क्या है, उस चैप्टर में तो क्या है कुछ भी हो, लेकिन इस चैप्टर में स्पॉन्टेनियस वर्ड आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, दैट पार्टिकल मिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, व्हाई cause it is due to the diffusion. And what is the diffusion? Diffusion is nothing, it is the intermixing of two different types of the matter by their own. And I told you why they mix, because of their concentration difference, ठीक है। देखो ये इस जार में हमने इंक डाली थी, ठीक है, इस जार में हमने इंक डाली थी, अब यहाँ पर इंक की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर इंक की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बट यहाँ पर अब मेन मुद्दे की बात क्या है कि अगर आप इसकी सराउंडिंग को देखो, यहाँ पर तो इंक की लो कंसंट्रेशन है ना, तो वो क्या करेगी, वो अपने आप को एक्सपेंड करेगी, ये बोलेगी ऐसा कैसे हो सकता है। जैसे कोई भी चीज़ होती है, एक किंग भी होता है, अ किंग always want to expand his kingdom, right? Let's move further. Okay, now this is again an example जो कि हमें शो करता है that particles of the matter attract each other. अब इस ये एग्जाम्पल क्या है चिल्ड्रंस, देखो इन्होंने स्टार्टिंग में हमें बोला था कि आप नेल ले लो, आप रबड़ ले लो, आप चोक ले लो, ठीक है, अब इनको आप ब्रेक डाउन करने की कोशिश करो। अगर आप आयरन नेल को तोड़ने की कोशिश करोगे, इट वुड बी मोस्ट डिफिकल्ट टू ब्रेक दैट आयरन नेल। फिर उसके बाद रबर, इट इज़ लिटल easier to break that rubber and it is most easy to break the chalk, ठीक है। अब इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न बहुत सिंपल है चिल्ड्रन, क्योंकि जो आयरन नेल्स या आयरन बॉल के जो पार्टिकल्स हैं, ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को मतलब पकड़ के रखा हुआ है, इनकी जो आपस में बातचीत है, जो भी अट्रैक्शन है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से चाहते हैं कि हम एक दूसरे से दूर जाएं। दे ऑलवेज एंड ऑलवेज वांट्स टू स्टे कनेक्ट विद ईच अदर, राइट, गॉट इट। तो इसकी वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। आपको तो ये इस एक्टिविटी से, इस एग्जांपल से आपको क्या क्लैरिटी मिलती है, दैट पार्टिकल्स ऑफ द मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ये एक्टिविटी मैं ऐसे नहीं पढ़ा रहा हूँ 9th क्लास में, कई बार सीधा सीधा आपसे एक्टिविटीज पूछ लेते हैं, दैट गिव सम एक्टिविटी टू शो दैट द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है, तो इनकी इम्पोर्टेंस है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्टेट्स ऑफ द मैटर। सिंस योर चाइल्डहुड आपने ये सुना होगा दैट मैटर हैज 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है, बट दिस इज नॉट ट्रू चिल्ड्रन। देखो ये क्या है, ये गैस है, ये क्या है, ये है आपका लिक्विड और ये क्या है आपका सॉलिड, ठीक है, एक है आपका गैस, एक है लिक्विड और एक है सॉलिड, ठीक है। तो आपको ये कैसे पता चला गैस ये लिक्विड है और ये सॉलिड है, बताओ। चलो इसके बारे में सोचो, तब तक के लिए मैं आपको नेक्स्ट चीज़ें बताता हूँ, ठीक है। तो आपको ये तो मैटर की डेफिनेशन पता चल गई, अगेन रिवाइजिंग यू, मैटर इज सब्सटेंस दैट हैज मास एंड दैट ऑक्यूपाइज और टेक्स सम स्पेस, ठीक है। डेफिनेशंस को आप मॉडिफाई कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर टर्मिनोलॉजी, बट इसमें मेन चीज़ क्या होनी चाहिए मास एंड वॉल्यूम, इट मस्ट ऑक्यूपाई सम स्पेस एंड हैज मास, ठीक है, यहाँ से आप कुछ भी मॉडिफाई कर सकते हो। अब देखो मैटर इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम्स, आयंस। अब देखो ये वर्ड तो सुने ही नहीं है, इतने बड़े बड़े हैवी हैवी वर्ड है, मॉलिक्यूल्स, एटम्स, आयंस। सिमिल्टेनियसली धीरे धीरे आप इन वर्ड्स से अवेयर होते जाओगे, बट इस चैप्टर के लिए आई डोंट थिंक कि आपको किसी भी वर्ड की आवश्यकता है, ठीक है। अभी हम तो आपका 3rd and 4th चैप्टर होगा आपकी केमिस्ट्री का ही, उसमें हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर मॉलिक्यूल्स, व्हाट आर एटम्स एंड व्हाट आर आयंस, बट अभी के लिए नहीं। तो मैटर को हमने क्लासिफाई कर दिया है 2 पार्ट्स में, व्हाट आर दिस अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड वन मोर स्टेट, एनी गैसेस, व्हाट इज दिस लेफ्ट स्टेट, वो स्टेट है आपकी आइंस्टाइन कंडेंस्ड स्टेट, ठीक है। तो अगर मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड दिखाऊं तो इस स्लाइड से आपको क्लैरिटी होती है
जस्ट अ सेकंड। अब आपको दिख रहा होगा, आपको यहाँ से क्लैरिटी हो रही होगी that states of the matter are not just three, but there are actually five states of the matter, right? और ये सिर्फ फाइव आंकड़ा, ये फाइव तक ही सीमित नहीं है, ये कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। इफ आई एम सेइंग दैट हाँ जी आपके पास 5 स्टेट्स, आई एम रॉन्ग। दिस इज इंक्रीजिंग डे बाय डे as the researches are going on as in different things, but आपके लिए there are let's suppose 3 states only। क्यों? क्योंकि ये इनको स्टडी करने के लिए जो आपको कॉन्सेप्ट, जो प्री रिक्विजिट नॉलेज चाहिए वो आपके पास अभी नहीं है, ठीक है? यू हैव टू स्टडी ओनली दीज 3 states। बट मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ। सॉलिड, देखो आप सॉलिड आपको पता ही होगा, व्हाट आर सॉलिड्स। आप अगर आप मैं आपको एक वर्ड दूँ सॉलिड, तो आपके दिमाग में इमेजेस बननी शुरू हो चुकी होंगी। सॉलिड, व्हाट इज सॉलिड? योर वुड इज सॉलिड, योर टेबल इज सॉलिड, योर डिवाइस इज सॉलिड, राइट? लिक्विड, लिक्विड में सबसे पहले आपको जूस, वाटर, all these things are your liquids। then gas, what about gas? gas आपको पता है steam, vapors, right? smoke, all these are gases, carbon dioxide, oxygen, what are these are your gases। now what is this plasma? see guys, your plasma is the fourth state, ठीक है? और ये बहुत हाइपर स्टेट है। इट्स नॉट लाइक कि हाँ जी ये प्लाज्मा है तो ये प्लाज्मा का मतलब है इट्स अ वेरी हाइपर स्टेट, राइट? व्हाट काइंड ऑफ स्टेट इज दिस? इट इज़ वेरी हाइपर स्टेट। अगर मैं आपको इसके कुछ एग्जांपल्स दिखाऊं, आप देख पा रहे हो लाइटनिंग, ये जो बिजली कड़क रही है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ प्लाज्मा। द सोलर विंड्स, जो कि अब तक आपने कभी एक्सपीरियंस भी नहीं की होगी, क्योंकि वो हमारी अर्थ थी, उसके सरफेस से ही ये चीज़ें रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, ठीक है? and your fluorescent light, all these things are the example of your plasma। yes, that's true, plasma is the fourth state, ठीक है? तो ये बहुत हाइपर स्टेट होती है। आपने ये बात करते हैं आइंस्टाइन कंडेंस स्टेट। तो ये जो है ये स्टेट बेसिकली आइंस्टाइन जी के द्वारा कुछ रिसर्च की होगी, इसलिए इसका नाम बोथ आइंस्टाइन कंडेंस स्टेट पड़ा है। और ये बहुत एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन होती है, ठीक है? एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन। अच्छा, इसी के साथ मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ चिल्ड्रंस, देखो हमारे पास कुछ यूनिट्स होती है और टेम्परेचर के लिए आप मेरे को बता सकते हो कैसे करके कि कौन कौन सी यूनिट आपने पढ़ी है? अभी तक आपने फ़ारेनहाइट सुना होगा, आपने फ़ारेनहाइट सुना होगा, सेल्सियस सुना होगा, बट एक और यूनिट होती है जो कि हम बेसिकली जिसको हम स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ द टेम्परेचर बोलते हैं, और वो होती है आपकी केल्विन, राइट? केल्विन इज व्हाट? केल्विन इज योर स्टैंडर्ड यूनिट फॉर टेम्परेचर, राइट? और 0 डिग्री सेल्सियस देख लो कन्वर्जन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके न्यूमेरिक्स में, जो आपकी बुक में गिवन है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 273 केल्विन, ठीक है? ये बात आप याद रखोगे ना? होप सो आप रखोगे, ठीक है? चलो 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 नेक्स्ट, लेट्स मूव फर्दर। तो हमने बेसिकली कौन सी स्टेट पढ़नी है? वी हैव जस्ट टू स्टडी ओनली 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है? मैंने आपको रीजन बता दिया है व्हाई वी आर नॉट स्टडिंग दी स्टेट्स लाइक प्लाज्मा एंड योर कंडेंस्ड स्टेट। अगर मैं आपको बता दूं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, आपको पता होगा? वो नहीं होगा पता, इसलिए आप CBSE हैज डिसाइडेड कि हाँ जी आपको कितनी स्टेट्स पढ़ाई जाए, ओनली 3। व्हाट आर दिस? योर सॉलिड, योर लिक्विड एंड योर गैस, ठीक है? अब आपको पता कैसे चलेगा? हाउ विल यू केम टू नो दैट व्हिच वन इज सॉलिड, व्हिच वन इज लिक्विड, व्हिच वन इज गैस? कुछ आइडिया लगा सकते हैं आप कि आपको कैसे पता चले? देखो हमने इनको क्लासिफाई किया है अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, मैंने आपको बोला था कि आप सोचो कुछ, अगर मैं आपको वर्ड दूँ सॉलिड तो आपके ब्रेन में क्या आया ना? कुछ हार्ड सी चीज जो कि रिजिड हो, जो कि दबाने पर ना दबे, ठीक है? तो चिल्ड्रंस
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हाँ जी ये जो आपकी है कौन कौन सी, योर सॉलिड, तो ये सॉलिड क्या है, रिजिड है। रिजिड है मतलब इनको कंप्रेस नहीं कर सकते, मतलब कर सकते हो हल्का फुल्का बट इतना ज़्यादा नहीं। ये इजीली अपनी ओरिएंटेशन जो उनकी प्रॉपर बाउंड्रीज हैं उनको दबाने नहीं देते, कंप्रेशन नहीं चाहते, इसीलिए इनकी फिक्स शेप होती है। ड्यू टू रिजिडिटी द नेक्स्ट पॉइंट अराइजेस दैट इज फिक्स्ड शेप। सिंस दे हैव फिक्स्ड शेप तो वॉल्यूम भी फिक्स रहेगी। ठीक है, हम डिस्कस करेंगे, देयर आर लॉट अदर प्रॉपर्टीज बट गेट अ सम बेसिक आइडिया दैट हाँ जी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। गॉट इट, गॉट दिस मच। बात करते हैं लिक्विड की। व्हाट इज लिक्विड? एनी गेसेस? Liquid is again a state of matter. But what is so special about this liquid? The so special thing about this liquid is that, my dearest children, कि इसकी जो properties होती हैं वो होती है कुछ that it is not rigid. Not rigid. It does not have any fixed shape. Does not have fixed form. अब देखो जिसकी fixed shape ही नहीं है तो आपको क्या लगता है वो रिजिड होगा? वो बिल्कुल नहीं होगा। बट इट हैज़ फिक्स्ड वॉल्यूम। देखो इसका एग्जांपल आप बड़े आराम से समझ सकते हो, पर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ थोड़ा ब्लैक स्क्रीन में, है ना। लेट्स चूज सम वाइट कलर। देखो तो क्या था, अगर मैं बात करूँ वाटर की, H2O की, ठीक है। अब इस वाटर को देखो ध्यान से समझना। लेट्स सपोज ये आपके पास एक जार, एक टेस्ट ट्यूब थी, है ना, और एक टेस्ट ट्यूब थी आपके पास कुछ ऐसी, ठीक है। डॉट को ड्राइंग पे मत जाओ इतना, इट इज वेरी नाइस, ठीक है। तो इसमें कुछ वाटर है, ठीक है। अब देखो इसकी अभी शेप क्या है, ये जब मैं इसको इसमें पोर करूँगा तो इसकी शेप क्या हो जाएगी, रेक्टेंगुलर। तो इसकी क्या शेप फिक्स है? व्हाट डू यू थिंक, डू इट हैव द फिक्स शेप? The answer should be no, does not have fixed shape, but it has what, fixed volume। वॉल्यूम का मतलब जो उसका अमाउंट था वो तो सेम ही है, जितना पानी मैंने इससे निकाला उतना इसमें डाला, उसमें उतना इसमें गया, है ना। तो उसकी वॉल्यूम क्या हुई, फिक्स। गॉट इट? यस। तो दैट्स व्हाई दिस पॉइंट इज मेंशन्ड हियर। बात करते हैं नेक्स्ट, वो है गैसेस। अब देखो गैसेस के बारे में तो क्या ही कहें हम। गैसेस का केस तो ऐसा है माय डियरेस्ट चिल्ड्रंस कि दैट योर गैसेस कैन have fixed they are not either rigid, they neither have their fixed shape nor they have fixed volume। क्यों नहीं उसकी उनकी फिक्स वॉल्यूम? देखो क्योंकि हम इसलिए बोलते हैं उनकी फिक्स वॉल्यूम नहीं होती क्योंकि गैसेस बहुत ज़्यादा फास्ट मूविंग होती है। फॉर एग्जांपल थोड़ा सा डिओड्रेंट इस पर्टिकुलर कॉर्नर में स्प्रेड करोगे तो पूरे रूम में फैल जाएगा, ठीक है। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग टू यू दैट they does not have their fixed shape nor have their fixed volume, ठीक है। okay, now let us understand it। देखो एक एक प्रॉपर्टीज को ध्यान से डिस्कस करते हैं ताकि आप डिफरेंस बड़े आराम से निकाल सकते हो। खुद सोचो, आप सॉलिड हैं तो उनकी डेफिनेट शेप होंगी, डेफिनेट वॉल्यूम होगी। स्पेस, अब पार्टिकल्स के स्पेस में होती हैं, आपको क्या लगता है होती हैं? तो उनके जो स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स हैं वो मिनिमम होती है, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? अब देखो कोई चीज आपको खींच रही है अपनी तरफ बहुत ज़्यादा, मीन्स विद ह्यूज अमाउंट ऑफ फोर्स, ठीक है, बहुत स्ट्रांगली आपको खींच रही है, तो आप क्या उसकी और आप उस चीज के और आपके बीच में जो डिफरेंस है वो बहुत कम रहेगा। सिमिलरली सेकंड पॉइंट आपका थर्ड पॉइंट को रिलेट कर रहा है ना। अगर आपको एक पॉइंट याद आता है, यू हैव टू रिलेट दी थिंग्स। वो डेफिनेट शेप क्यों है? क्योंकि वो रिजिड है। रिजिड क्यों है? क्योंकि उनके बीच में स्पेस है बहुत कम है। स्पेस कम क्यों है? क्योंकि जो उनकी जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है जो एक दूसरे को वो पकड़ के रखते हैं वो मैक्सिमम है। अब देखो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, देखो एक दूसरे को पकड़ा हुआ है तो आपको क्या लगता है मूवमेंट होगी? बताओ।
नहीं होगी ऑफ कोर्स, तो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स विल बी मिनिमम एंड दे आर लिस्ट कंप्रेसिबल, सेम रीजन, राइट, क्योंकि वो रिजिड है। अब बात करते हैं लिक्विड। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लिक्विड? देखो चिल्ड्रंस, वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट लिक्विड्स बिकॉज आपका जो ट्वेल्थ है, ट्वेल्थ का पहला चैप्टर ही आपका सोल्यूशन है, ठीक है। तो लिक्विड्स हैव नो डेफिनेट शेप बट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। लिक्विड takes the shape of the container, right? The space between the particles is intermediate. The forces of attraction between the particles is intermediate and the movement of particles is intermediate and they are less compressive. देखो हम जो कंपैरिजन कर रहे हैं लिक्विड का विद सॉलिड एंड गैसेस, ठीक है। तो देखो उनकी तो फिक्स शेप तो है नहीं, वो मैंने आपको बता दिया क्यों। मैंने जो टेस्ट ट्यूब वाला एग्जांपल है आपने वो अपने दिमाग में फिक्स कर लेना है और उनकी फिक्स्ड वॉल्यूम भी होती है, ठीक है। द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज इंटरमीडिएट, मतलब ना ज़्यादा स्पेस होती है ना कम होती है, मतलब इतनी होती है कि सॉलिड से ज़्यादा होती है लिक्विड से कम होती है। तो ये वर्ड एक कीवर्ड है आपका, ठीक है, स्पेस एंड योर कीवर्ड। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी इंटरमीडिएट, इसमें सब कुछ इंटरमीडिएट होता है, मतलब बीच का, सॉलिड और लिक्विड के बीच का, ठीक है। बात करते हैं गैसेस की। व्हाट डू यू थिंक व्हाट अबाउट गैस? गैसेस हैव नो डेफिनेट शेप, नो फिक्स वॉल्यूम, ठीक है। अब देखो इसमें तो सब कुछ ही मैक्सिमम है, देखो स्पेस उनके बीच में बहुत ज़्यादा है। अब स्पेस ज़्यादा होगी तो आपको क्या लगता है पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन होंगे, दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते होंगे पार्टिकल्स, आप खुद ही बताओ। एक पार्टिकल यहाँ एक यहाँ है तो उनके बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज सो लो, जिसकी वजह से फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर मिनिमम। द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इज मैक्सिमम, क्यों? क्योंकि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ही मिनिमम है। जो फोर्स पकड़ा हुआ है एक दूसरे को वही बड़ी कम है, तो वो फ्री है, घूमे कहीं पर, मतलब आप में कोई प्रेशर ना हो, आप में कोई मतलब आपके पेरेंट्स आपको ना बोलते हो कि आप यहाँ पर जाओ वहाँ पर ना, आप तो फ्री हो, यू आर इंडिपेंडेंट, लाइक वी आर इंडिपेंडेंट सिटीजन्स ऑफ इंडिया, तो हम कहीं पर भी जा सकते हैं, राइट। सो दैट मीन द सेम थिंग, ठीक है। और दे आर मोस्ट कंप्रेसिबल, क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हैं, इसकी वजह से आसानी से। अब देखो जो चीज़ ऑलरेडी ही पास में होती है, बोलते हैं ना एकता में बल है, तो यहाँ पर एकता है ही नहीं। एकता कहाँ पर दिखती है हमें? सॉलिड्स, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं सॉलिड्स के, लाइक योर हैट, स्केटबोर्ड, पेंसिल्स, नोज, टेबल, बाइसिकल, एप्पल, कंप्यूटर, ट्री हाउस। Else there are n amount of the example of solids. Similarly for liquid, milk, drink, rain, soap, juice, hot chocolate, watering pool, and all these drinks, right? Talking about gas, wind, air, hot balloon, fog, wind, all these are the examples of your gas, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा this much, ठीक है। इसमें कोई डाउट होगा आपको चिल्ड्रन, यू मे टेल मी, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दिस थिंग, ठीक है। चलो आपको इतना क्लियर हो गया। अब हम बात कर रहे हैं, देखो क्या आप सॉलिड से लिक्विड बना सकती हो? क्या आप सॉलिड से लिक्विड बना सकती हो? क्या आप लिक्विड से सॉलिड बना सकती हो? यस गाइस, आई विल बी डिस्कसिंग नाउ, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? The answer is yes, the matter can change its state. But how do you think it can do so? It can do so by the two things. What are these? First one is by changing the temperature, and second one is by changing the pressure. These are the two fundamental things that helps the matter to change its state. Right? Let's discuss it one by one. So, effect of change in temperature. We all know from our observation that water can exist in three states. कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड के एग्जांपल सिंपली जो भी आप ड्रिंक करते हो वो सॉलिड, सॉरी जो भी लिक्विड के एग्जांपल जो भी आप ड्रिंक करते हो वाटर, वो वाला वाटर। आइस इज द एग्जांपल ऑफ यस सॉलिड वाटर, एंड गैस वेपर्स जो आपकी स्टीम होती है, ठीक है।
दैट इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट योर आइस। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि कैसे हम कन्वर्ट करें सॉलिड को लिक्विड में, सॉलिड टू लिक्विड। देखो अब खुद ही सोचो, सॉलिड में हमने पढ़ा था कि हाँ जी जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के पास पास होते हैं, ये पार्टिकल्स आर सो क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, ये बात आपको पता है, आपके माइंड में कहीं ना कहीं है। तो अगर मैं उसके पार्टिकल्स को दूर कर दूं तो वो लिक्विड नहीं बन जाएंगे, क्योंकि लिक्विड में तो पार्टिकल्स इंटरमीडिएट थे। ठीक है, अब दूर कैसे करूं? देखो अगर मैं आपको बोलूं कि आपको आपके घर से अलग होना है, ठीक है, आप कब होंगे? जब आपके पास इनफ, आप फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे। सिमिलरली यहाँ पर जो फाइनेंशियल वाला फैक्टर है वो टेम्परेचर प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो अगर आप देखो आइस को अगर आपने लिक्विड में चेंज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको हीट कर दो, प्रोवाइड इट अ हीट। जस्ट बाय दैट हीट you can convert the solids to liquid, solids into what, into your liquids। ठीक है, क्यों? उससे क्या होगा, अगर आपने सॉलिड्स को लिक्विड में करना है तो आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होगी, आप में एनर्जी बढ़ जाएगी। आपकी एक टर्म यूज होती है जिसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये पोजेस करती है मोशन को। ठीक है, जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी उतनी आपकी मोशन। और ये कैसे आएगी, टेम्परेचर। जो थर्मल एनर्जी है वो मॉलिक्यूल्स को मिलेगी, जिसकी वजह से उनमें काइनेटिक एनर्जी डेवलप होगी और वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ के बिखर जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो चेंज ऑफ सॉलिड ऑफ सब्सटेंस। अब इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ये तो हमने समझ लिया कि हाउ कैन बी कन्वर्ट सॉलिड टू लिक्विड, बट द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ सॉलिड टू अ लिक्विड, दैट इज नोन एज मेल्टिंग। व्हाट इज दिस मेल्टिंग पॉइंट? अब देखो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जिसमें आपका सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, और वो कौन सा होता है, वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। सो मेल्टिंग पॉइंट is your 0 degree Celsius. The temperature at which a solid melts and become liquid at the atmospheric pressure. ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या आता है, 1 atm। ठीक है, नॉर्मल प्रेशर, एटमॉस्फेरिक मतलब जो एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर लगा रहा है उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और वो बिल्कुल नॉर्मल होता है। ठीक है, चलो अब देखो लिक्विड टू गैस करना है तो इसमें और, अब लिक्विड है, इंटरमीडिएट पार्टिकल्स थे, मतलब थोड़े दूर थे लेकिन इतने भी ज़्यादा नहीं थे, अब हमें उनको और ज़्यादा दूर करना है। तो कैसे करेंगे उनको और ज़्यादा दूर? उसके लिए सिंपल और टेम्परेचर दे दो उनको। अगर आप टेम्परेचर कितना रेज करोगे, इतना करोगे कि वो उनमें मोशन स्टार्ट हो जाए फिर से, तो वो क्या, वो फिर से अपनी स्टेट चेंज कर लेंगे, वो लिक्विड टू सॉलिड चले जाएंगे, चले जाएंगे ना? बताओ, कम ऑन यू कैन टेल मी। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बॉइलिंग। आपने सुना भी होगा कि वाटर को बॉयल कर दो, क्यों करते हैं, ताकि वो थोड़ा वार्म हो जाए, उनमें स्टीम कन्वर्ट हो जाए। जैसे अगर आपको ड्यूरिंग विंटर्स ऑफ कोर्स कॉमनली कफ एंड कोल्ड होता है सबको, तो यू इफ़ यू विल टेक स्टीम ना, तो स्टीम से आपका बोलते हैं गला साफ हो जाते हैं नोज। तो स्टीम क्या है, वो भी वाटर ही वेपोरेट हो रहा है, वाटर लिक्विड से, सॉरी लुक, यस, वाटर आपका लिक्विड से गैस बन रहा है ना? लिक्विड से क्या बन रहा है, गैस। वेरी इंपॉर्टेंट। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या है, वो टेम्परेचर जिसमें लिक्विड आपका बॉइल्स हो और डायरेक्टली चेंज हो जाए, रैपिडली चेंज हो जाए इनटू गैस, और वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलो बात करते हैं हम गैस टू लिक्विड। अब हम वापस आना चाहते हैं, हम क्या करें, उसको उसकी एनर्जी कम कर देंगे, उससे उसकी जो काइनेटिक एनर्जी हमने दी थी वो हम उससे वापस ले लें, तो वो फिर से लिक्विड में आ जाएगा ना?
तो टेम्परेचर को डिक्रीज कर दो। कैसे करते हैं डिक्रीज? सिंपली उसको क्या कर दो आप, टेम्परेचर तो डिक्रीज करोगे बट कैसे करोगे, उसको रेफ्रिजरेटर में डाल दो, या उसको इस प्रोसेस को बोलते हैं हम कंडेंसेशन। ठीक है, द प्रोसेस इन विच द गैस ऑन कूलिंग टर्न्स इनटू लिक्विड एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर इज नोन एज कंडेंसेशन और लिक्विफिकेशन। चलो, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? व्हाट डू यू थिंक? टॉकिंग अबाउट लिक्विड टू सॉलिड, जब आपका लिक्विड कूल होता है, by lowering its temperature, its particle lose the kinetic energy and come to the stationary position, causing the liquid to turn to solid. ठीक है, और ज़्यादा कूल करते हैं, उसको बोलते हैं फ्रीजिंग। जैसे अगर आप मिल्क से आइसक्रीम बनाना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, मिल्क में जो भी आप मटेरियल ऐड करना चाहते हो, फ्लेवर कुछ भी, चॉकलेट्स एंड ऑल, उसके बाद आप क्या करो, उसके बाद मेल्टिंग करने, सॉरी नॉट मेल्टिंग, उसको आप रेफ्रिजरेटर में लगा देते हो तो वो फ्रीज हो जाता है। फ्रीजिंग, फ्रीजिंग इज द प्रोसेस इन विच द लिक्विड चेंज इनटू द सॉलिड। ठीक है, क्लियर है इतना? इतनी क्लैरिटी मिल चुकी है आपको। चलो नेक्स्ट चलते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? जनरली 0 डिग्री सेल्सियस ये फ्रीजिंग पॉइंट होता है, टेम्परेचर एट विच द स्टेट ऑफ द सब्सटेंस फ्रॉम अ लिक्विड टू अ सॉलिड इज कॉल्ड फ्रीजिंग। ठीक है, सब्सटेंस चेंज हो जाता है लिक्विड से सॉलिड में। अब देखो फ्यूजन क्या होती है, ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज फ्यूजन? फ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट। ठीक है, अब ये मेल्टिंग और फ्यूजन, दिस बोथ आर द सेम थिंग, राइट? इसके लिए मेल्टिंग भी सेम वर्ड है, इट मीन्स सेम प्रोसेस सेम है, सॉलिड टू लिक्विड, बट वर्ड्स आर डिफरेंट। ठीक है, अब इसमें एक टर्म यूज होती है लेटेंट हीट। देखो अगर हम बात करते हैं, देखो 0 डिग्री कैसा टेम्परेचर होता है जिसमें आप नोटिस करोगे कि जो मेरा, देखो मेरा आइस जो है वो मेरा वाटर में तो कन्वर्ट हो गया, मतलब लिक्विड में तो कन्वर्ट हो गया, लिक्विड वाटर बन गया मेरा आइस से, बट अब इसमें कंडीशन क्या है, उसका टेम्परेचर तो सेम है ना। टेम्परेचर जैसे 0 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा टेम्परेचर है जिसमें आइस भी फाउंड होता है और वाटर, बट जो लिक्विड होता है उसका टेम्परेचर भी सेम होता है, जो आइस होती है उसका भी सेम होता है, तो इसमें कुछ तो हिडन चीज है, तो इसको बोलते हैं लेटेंट हीट। कौन सी हीट? लेटेंट हीट। The heat that is required to change the state of substance without causes to rise its temperature, उसको बोलते हैं latent heat। देखो आइस और लिक्विड 0 डिग्री सेल्सियस में सेम है, ठीक है, सेम टेम्परेचर है, बट वो स्टेट्स तो अलग अलग हैं, तो उसको बोलते हैं हम लेटेंट हीट, हिडन हीट। लेटेंट का टर्म क्या होता है? लेटेंट मीन्स हिडन, तो लेटेंट हीट, लेटेंट हीट मीन्स द हिडन हीट, दैट इज वो चेंज करती है सिर्फ स्टेट्स को विदाउट चेंजिंग इन द टेम्परेचर। गॉट इट? ओके, अब इसमें लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन आ गया, हिडन हीट किसकी? मेल्टिंग की। अब इसमें स्टैंडर्ड चीजें आ जाती है, कौन कौन सी स्टैंडर्ड चीजें? आप देखो स्टैंडर्ड चीजें हैं टू कन्वर्ट, देखो यहाँ पर लिखा है, जस्ट नोटिस हियर, व्हाट विल यू ऑब्जर्व? टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड, अब नीचे नेक्स्ट लाइन में आके हैं, इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन। समझ आया आपको ये कॉन्सेप्ट क्या बोला मैंने आपको? मैं बोल रहा हूँ अपनी सॉलिड टू लिक्विड तो हो रहा है, बट जो भी हीट हिडन है उसके अंदर कि उसका टेम्परेचर ना बढ़े, नो राइज इन द टेम्परेचर, नो राइज इन द टेम्परेचर, ये चीज कैंसिल है, उसको बोलते हैं हम लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन। सिमिलरली लेटेंट हीट ऑफ द वेपराइजेशन होती है, वेपराइजेशन होती है जो वो ना 100 डिग्री सेल्सियस में। अब आपको क्या लगता है 100 डिग्री? देखो लिक्विड वाटर भी, मतलब लिक्विड वाटर भी 100 डिग्री में एग्जिस्ट कर सकता है और स्टीम भी एग्जिस्ट करती है,
अब ये लिक्विड से स्टीम में तो जा रहा है किसके कारण? बिकॉज ऑफ द लेटेंट हीट ऑफ द वेपराइजेशन, ठीक है। So the heat required to convert 1 kilogram of liquid into gas at the atmospheric pressure at its boiling point is known as the latent heat of the vaporization. उम्मीद है आपको क्लैरिटी हो रही है, आपको थिंग्स यू आर गेटिंग द थिंग्स कि हाँ जी ये क्या चीज़ें हैं। बात करते हैं सब्लिमेशन की। देखो सब्लिमेशन एक डायरेक्ट चेंज होता है फ्रॉम सॉलिड टू गैस। व्हाट इज द सब्लिमेशन? इफ क्वेश्चन कम्स टू यू कैन से दैट change of state from solid to liquid, sorry, from solid to gaseous state without changing its liquid state, ठीक है, without changing into liquid state सीधा कन्वर्शन होती है। जैसे एग्जांपल बताओ, कैम्फोर, नेफ्थलीन बॉल्स जो आप कपड़ों के बीच में डालते हो ना, वो देखो आपने उनको देखा कि कभी लिक्विड हो रही है? नहीं, उनकी बस फ्रेगरेंस होती है, वो गैस में कन्वर्ट हो जाती है। पहले वो सॉलिड होती है और फिर सॉलिड से सीधा गैस। गॉट इट? चलो अब बात करते हैं हम प्रेशर के बारे में। देखो अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे ना, तो फॉर एग्जांपल अगर आपने गैस में प्रेशर लगाया बहुत ज़्यादा, तो वो क्या बन जाएगी? लिक्विड। अगर आप लिक्विड में बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाओगे तो वो क्या बन जाएगा? सॉलिड, ठीक है। तभी एक एग्जांपल है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम ड्राई आइस के नाम से जानते हैं। अब ये ड्राई आइस क्या है? ये नथिंग बट हमने कार्बन डाइऑक्साइड को इतना ज़्यादा कंप्रेस किया कि अब वो सॉलिड बन चुकी है, जिसकी वजह से वो ठंडी होती है एक्चुअल में, इसलिए उसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी ड्राई आइस, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। चलो बात करते हैं इवेपोरेशन की। व्हाट इज इवेपोरेशन नाउ? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम लिक्विड टू द स्टेट। अब देखो जनरली समझते हैं, नॉर्मली डेफिनेशन को छोड़ो। इवेपोरेशन होती क्या है? देखो सबसे पहले इट रिक्वायर्स सरफेस, ये सरफेस फिनोमिना। अब सरफेस फिनोमिना का मतलब क्या है? व्हाट डज सरफेस फिनोमिना मीन? सरफेस फिनोमिना का मतलब है कि इसको होने के लिए सबसे पहले एक सरफेस चाहिए। फॉर एग्जांपल ये आपका सन है, मान के चलते है ना, और यहाँ पर आपका ये बीकर है। अब इसके अंदर वाटर है, समथिंग कुछ हुआ है। अब सन की रेस आ रही है डायरेक्टली, इनमें एनर्जी स्टोर है ना। जैसे ही इनमें स्ट्राइक करेगी तो इसके अंदर बिकर के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्लियरली समझते हैं। बिकर के अंदर क्या हो रहा है? ये आपका बिकर है। अब इसके अंदर पार्टिकल्स थे और थोड़ा मैं इसको ऐसे बनाऊँ, यहाँ पर बनाता हूँ। तो तो ये जो आपका बिकर था, इसके यहाँ पर अपर लेयर में पड़ी ना लाइट, और ये चार्ज भी, ये हीटअप भी यहीं पर होंगे। तो ये क्या होता है? लेयर वाइज लेयर प्रोसेस होता है। ये लेयर आई, इसमें हीटिंग हुई, ठीक है, इनफ टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, इनफ एनर्जी मिल गई, फ्रॉम लिक्विड टू सीधा गैस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इवेपोरेशन। अब इन्होंने क्या लिखा है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम लिक्विड state to the gaseous state at any temperature below its boiling point is called evaporation, ठीक है। एक तो मैंने बता दी सरफेस फिनोमेना, और दूसरा पॉइंट अंडरस्टैंडिंग का ये कि इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको 100 डिग्री सेल्सियस ही चाहिए, क्योंकि जनरली लिक्विड से गैसियस को कन्वर्ट करने के लिए जनरली इसके लिए लिक्विड्स को गैसेस में कन्वर्ट करने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता पड़ती है, बट हमें यहाँ पर उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यह है इवेपोरेशन, ठीक है। सरफेस फिनोमिना है ना, ऊपर वाले का टेम्परेचर बढ़ा, वो उड़ गया नीचे, फिर नीचे वाली लेयर आएगी, ऐसे सिमिलरली इवेपोरेशन occurs।
नाउ फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग द इवेपोरेशन, सबसे पहले सरफेस एरिया। मैंने आपको बोला था सरफेस एरिया है तो सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। अब देखो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ही ज़्यादा वो लाइट रिसीव करेगा, तो वो क्या करेगा अल्टीमेटली वो स्पीड को इंक्रीज कर देगा ऑफ इवेपोरेशन। ठीक है, अब बात करते हैं टेम्परेचर की। देखो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इवेपोरेशन डेफिनेटली इंक्रीज होगी ही होगी। ठीक है, अब इन्होंने एक चीज और बोली थी दैट बॉइलिंग वाटर इवेपोरेट्स फास्टर देन द फ्रेश टैप वाटर। इसका रीजन आपको क्या लगता है? क्योंकि वो ऑलरेडी गर्म है ना, गर्म है ऑलरेडी, उसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। यहाँ से हमें ये क्लैरिटी मिलती है दैट अगर आपकी कोई भी चीज़ है उसका टेम्परेचर ऑलरेडी बढ़ा होगा दैट विल शो द इवेपोरेशन फास्टर। थर्ड फैक्टर है ह्यूमिडिटी। और देखो ह्यूमिडिटी क्या होती है, एक टाइप का वो ब्लॉकेज की तरह एक्ट करेगी। कैसे करेगी, मान के चलो ये आपका बिकर था, ठीक है, इसमें से कुछ पानी उड़ा, बट ऑलरेडी एयर में वाटर मॉलिक्यूल्स है, तो आपको नहीं लगता ये इस प्रोसेस को स्लो करेंगे? they will ultimately slow down this process. Got it? So it, if your humidity will be high in the air, then your evaporation will decrease. If your humidity will be less or will be decrease in the, there will be the decrease in the humidity, then there will be increase in the rate of evaporation. दोनों बातें सेम है। अब देखो विंड स्पीड है, विंड स्पीड क्या करेगी, विंड स्पीड होगी अगर, और हवा यहाँ पर ब्लो कर रही है, मान के चलो स्पीकर के ऊपर, तो इसने इवेपोरेट हुए और इस हवा ने उसको आगे बचा दिया, यहाँ पर फिर से वही सेम प्रेशर बन गया, तो क्या करेगी, इट अगेन इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ इवेपोरेशन। ठीक है, नाउ हाउ डू इवेपोरेशन कॉज द कूलिंग। देखो क्या होता है, जितनी भी हीट होती है उस चीज में, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम बिकर के एग्जाम्पल ले रहे हैं, बात करते हैं हम क्लॉथ की। अब इस क्लॉथ में हमारे पास जितनी भी हीट थी, दैट हीट विल बी, व्हाट विल हैपन टू दैट हीट, वो हीट क्या होगी, देखो लाइट स्ट्राइक हुई, टेम्परेचर बढ़ा, और उसकी वजह से ये जितने भी पार्टिकल्स थे वाटर्स के वो सारे इवेपोरेट हो गए। ठीक है, और इवेपोरेट तो हुए, और जितनी भी आपकी बॉडी में हीटिंग थी उतनी भी थी वो सारी लेकर चले गए। तो क्या होगा इससे, नंबर वन, इट कॉजेज कूलिंग। आपने ये बात ऑब्जर्व भी की होगी कि अगर आपको कभी भी स्वेट आती है, आप गर्मियों में आमतौर से स्वेट करते हो, तो आपको प्रेफर करते हैं कि आप कॉटन के क्लॉथ पहनो। क्यों? क्योंकि वो गुड अब्जॉर्बर है, उसमें पोर्स होते हैं, पोर्स होंगे मतलब छेद होंगे हल्के हल्के, जिसकी वजह से आपकी बॉडी को वो सपोर्ट करेगा इवेपोरेशन करने के लिए। ठीक है, तो अल्टीमेटली दैट विल मेक द इवेपोरेशन फास्टर एंड इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। ठीक है, समझ आ गया आपको? द क्वेश्चन कम, व्हाई डू वी वियर द कॉटन क्लॉथ्स इन द समर। नेक्स्ट थिंग इज, why do we see the water droplets on the outer surface of this glass? क्यों, कैसे लगता है आपको कि हाँ जी मैं यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा हूँ वाटर ड्रॉपलेट्स को। लेट मी जस्ट डिक्रीज माय वीडियो साइज। ठीक है, इतना काफ़ी है। अब देखो आपको ऐसा क्यों लगता है, ऐसा इसलिए होता है, इसको आप कॉमनली आप देख भी सकते हो, अगर आप आपकी बोतल है, इसमें आपने ठंडा पानी डाला है, तो आप देखोगे उसके नियर बाय जो चीज़ें होती हैं, मतलब वो उसके सराउंडिंग्स में वाटर ड्रॉपलेट्स अपने आप आती है। क्या वो चीज़ें अंदर से आती है? आंसर इज नो। क्या होता है चिल्ड्रन, देखो ये जो आपकी वाटर ड्रॉपलेट है, ट्राई टू नॉट जस्ट अ सेकेंड, राइट। तो ये जो आपके वाटर थी, ठीक है ना, तो बेसिकली क्या होता है, जो पार्टिकल, देखो इसको आप ऐसे समझो, यहाँ पर ये आपका वाटर का ग्लास है ना, मान के चलो जनरली ऐसा होता है ग्लास, इसके अंदर वाटर था और ये बहुत
कोल्ड वाटर था इसके अंदर। अब देखो इसके आसपास ह्यूमिडिटी के पार्टिकल्स होंगे, मॉइस्चर होगा। जब मॉइस्चर इसके साथ स्ट्राइक करेगा तो वो क्या करेगा, वो अपनी एनर्जी इस ग्लास को दे देगा। अब वो क्या करेगा, वो इसको रिलीज कर देगा, ठीक है, वो इसको क्या करेगा, वो इसको रिलीज कर देगा। गॉट इट। तो इसी की वजह से इवेपोरेशन इसी की वजह से जो आपकी इस ग्लास में है ये ड्रॉपलेट्स बाहर से आ जाती हैं। क्लियर है। चलो, सो गाइस विद दिस आई मस्ट से कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अभी मैं इस वीडियो को एंड करने का टाइम आ गया है क्योंकि आपका चैप्टर ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका क्लास 9th का ही चैप्टर 2 जिसका नाम है इज मैटर अस अराउंड अस इज इट प्योर और इम्प्योर। जो हमने बात की थी ना केमिकल प्रॉपर्टीज की, कौन सी स्लाइड में, मैं आपको स्लाइड दिखा दूं ज़रा, ये वाली। हम इसी स्लाइड से मैं फर्दर कंटिन्यू करूँगा तब, ठीक है। एक मिनट ज़रा यहाँ पर देख, हाँ, तो मैं इसी स्लाइड से कंटिन्यू करूँगा जो ये स्लाइड है। मैं अभी केमिकल क्लासिफिकेशन, हमने फिजिकल क्लासिफिकेशन तो देख लिया है, ये जो फिजिकल दूर का था ना ये हमने देख लिया है। सॉलिड आपको पता चल गया है, व्हाट आर सॉलिड, व्हाट आर लिक्विड, व्हाट आर गैसेस। प्लाज्मा नॉट इन योर करिकुलम, बट आपके करिकुलम में है आगे केमिकल क्लासिफिकेशन, प्योर और इम्प्योर, मिक्सचर्स, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, सारे टर्म्स आपको क्लियर होंगे, ठीक है। कंपाउंड्स, एलिमेंट्स, एटम्स, ये सारे वर्ड्स होंगे स्लोली स्लोली। अभी आपका पहला चैप्टर था, तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, राइट। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, ठीक है, इस वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से शेयर करो क्योंकि उनका भी भला होना चाहिए, उनकी ज़रूरी तो नहीं, आप डोंट बी सेल्फिश, उनकी भी हेल्प करो, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो ट्यूटोरियल। आशा आपको मज़ा ज़रूर आया होगा क्योंकि समझ आता है तभी मज़ा आता है, मज़ा आता है तभी समझ आता है, ठीक है। चलो गाइस, नाउ दिस टाइम टू से a bye to all and yes don't forget to subscribe my channel, ठीक है, ताकि आपको जैसे ही सेकंड वीडियो अपलोड हो आपको सीधा ही नोटिफिकेशन आ जाए विदाउट एनी डिले, ठीक है। और आई विल मेक श्योर कि आपकी साइंस एंड एसएसटी बिल्कुल टिप्स में हो। इन योर क्लास 10th आई विल बी कंटिन्यूइंग दिस सेम वीडियोस, ठीक है। इन योर इवन क्लास 11th and 12th I will be bringing the videos for the 3 subjects or I will try to bring the videos for the 4 subjects। उसमें पीसीएम तो होगा बट बी की भी मैं ट्राई करूँगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ठीक है। बस इतना ही। अब आप एक बार इस सारे चैप्टर को रिवाइज कर लो। देखो मैंने 1 घंटे से पहले, अभी 1 घंटे को भी 2 मिनट है, ठीक है, तभी मैंने ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा दिया। दिस इज़ नॉट डिफिकल्ट। थोड़ी सी डेफिनेशंस को रिवाइज मारो, मेरे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करो जो मैंने आपको बताया है, सोलर लिक्विड गैस के प्रॉपर्टीज़ को रिवाइज करो, एक्टिविटीज़ को देखो, समझो उनको, ठीक है। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आपको कोई कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है तो आप मेरे को पूछ सकते हो, यू कैन पुट दी कमेंट बिलो, ठीक है, पुट दी कमेंट बिलो, ठीक है। चलो guys, that's all for this video tutorial. Stay tuned for the next video that will be on the chapter 2, that is matter around us pure or impure. Thank you so much to be the patient listener.